عالمی امن اور تعاون کی جانب تاریخی قدم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کردہ بورڈ آف پیس کا باضابطہ قیام۔ ڈیووس میں ہونے والی تقریب میں 20 ملکوں نے غزہ بورڈ آف پیس کے منشور پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کی جانب سے دستخط کیے۔ بحرین، مراکش، ارجنٹینا، آرمینیا، آذربائیجان، بلغاریہ، ہنگری، انڈونیشیا، اردن، قازقستان، کوسووو، پیراگوئے، قطر، سعودی عرب، ترکی، متحدہ عرب امارات، ازبکستان اور منگولیا شامل۔ Together we are in a position to have an incredible chance. As president, I ended those 8 wars in 9 months, including Pakistan and India. عالمی امن کے لیے بورڈ آف پیس ایک منفرد اور بے مثال ادارہ ثابت ہوگا۔ چارٹر کے ذریعے دنیا میں دیرپا امن کا قیام، تشدد اور نفرت کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ بورڈ آف پیس میں دنیا کے اہم اور طاقتور رہنما شامل ہیں۔ گزشتہ سال 8 جنگوں کے خاتمے میں کردار ادا کیا۔ غزہ میں بڑے پیمانے پر انسانی امداد فراہم کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بورڈ آف پیس کے چارٹر پر دستخط کی تقریب سے خطاب۔ چارٹر پر دستخط کرنے والے رہنماؤں سے اظہار تشکر۔ غزہ بورڈ آف پیس کے منشور پر دستخط کی تقریب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے درمیان نہایت دوستانہ انداز میں خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ امریکی صدر کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بارے میں استفسار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب میں موجود چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کی نشاندہی پر امریکی صدر کا پرجوش انداز میں فیلڈ مارشل کا خیر مقدم۔ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کا اجلاس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر فورم میں شریک عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز۔ عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی خوشگوار ملاقاتیں۔ وزیر اعظم اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے بھی ملاقات۔ غیر رسمی ملاقاتوں کے دوران خوشگوار جملوں اور مسکراہٹوں کا تبادلہ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے تھائی لینڈ کے وزیر خارجہ اور انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس کے صدر کی ڈیووس میں الگ الگ ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال، معیشت، تجارت، سرمایہ کاری اور زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کا اعادہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس کی ڈیووس میں ملاقات۔ صحت اور ادارہ جاتی اصلاحات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان میں جاری اصلاحاتی عمل اور پائیدار ترقی کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے پولیو کے خاتمے کے لیے کاوشوں پر گیٹس فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا۔ شفافیت اور ڈیجیٹل نظام کے ذریعے ملکی وسائل میں اضافہ حکومت کی اہم ترجیح ہے: محمد اورنگزیب۔ آذربائیجان کی کمپنی سوکار کا پاکستان کے تیل اور گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کو فروری میں حتمی شکل دینے کا اعلان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے آذربائیجان کی اسٹیٹ آئل کمپنی سوکار کے صدر روشن نجف کی ڈیووس میں ملاقات۔ سرمایہ کاری کو حتمی شکل دینے کے لیے قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ شفافیت اور سرمایہ کاروں کے لیے بہتر ماحول یقینی بنانے کے لیے اصلاحات پر کام جاری ہے: وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ صوبائی حکومت کی بے روزگاری کے خاتمے کے لیے مربوط کاوشیں۔ پنجاب میں روزگار کے 9,94,000 مواقع۔ مریم نواز ہیلتھ کلینکس، سکولز، ستھرا پنجاب سمیت دیگر منصوبوں سے ملازمت کے مواقع پیدا ہوئے۔ 3,15,536 نوکریاں باقاعدہ سرکاری بھرتیوں، ادارہ جاتی اصلاحات اور سروسز میں توسیع کے ذریعے پیدا کی گئیں۔ 2,03,000 روزگار کے مواقع آسان کاروبار اقدامات کے تحت ایس ایم ای فائنینسنگ کے ذریعے فراہم کیے گئے۔ 4,75,500 بالواسطہ اور بلا واسطہ پیدا ہونے والی نوکریاں اپنی چھت اپنا گھر، سڑکوں اور دیگر تعمیراتی منصوبوں سے وابستہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایکس پر بیان۔
पंजाब में पेट्रोलिंग के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निज़ाम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुल्क की तारीख के पहले ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट का लाहौर में इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को खुद ड्राइव किया। मरियम नवाज को ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर तफसीली ब्रीफिंग। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेंज 410 किलोमीटर फी चार्ज है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से सालाना फी गाड़ी तकरीबन 4,500 लीटर ईंधन की बचत, ऑपरेशनल लागत में कमी और जीरो कार्बन अखराज होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज। गुल प्लाजा आतिशज़दगी में जाँ बहक अफराद की तादाद 50 हो गई। 88 ताहाल लापता। 50 अफराद के पोस्टमार्टम के बाद DNA के जरिए 8, जबकि चेहरे के खदोखाल से 7 अफराद की शनाख्त। मजीद लाशों की शनाख्त का सिलसिला जारी। गुल प्लाजा में सर्च आज भी जारी रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद प्लाजा मुनहदिम कर दिया जाएगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। पशीन में 35 साल बाद बर्फबारी। मरी में भी बर्फबारी। कराची में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित, इस्लामाबाद, पंजाब में भी मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। वादी तीरा और मुल्हिका इलाकों में शदीद बर्फबारी के दौरान पाक फौज मकामी इंतजामिया से मिलकर ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने में मसरूफ। मुतासरा खानदानों को खुराक, गर्म रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात की मुसलसल फराहमी जारी। बच्चों, बुजुर्गों और माजूर अफराद की देखभाल के लिए खुसूसी इंतजाम। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इमदादी टीमें अलर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 654 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,87,688 पर बंद। मार्केट में 49 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के सफरा की मुलाकात। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती, दिफाई ताउन, पाकिस्तान और आसियान रुकन मुल्कों के दरमियान रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा का इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली में आसियान के मरकजी किरदार के लिए पाकिस्तान की हिमायत का यादा। आसियान सफीरों ने इलाकाई अमन में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। इजलास कल दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फैसला उम्मत मुस्लिमा के मफाद में किया। मकसद फलस्तीन में मुस्तकिल जंगबंदी और तामीर नौ के अमल में हिस्सा लेना है। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर और मसला फलस्तीन को हर फोरम पर उजागर किया। पूरी दुनिया ने फलस्तीन के मजलूम अवाम के लिए आवाज बुलंद की है। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर को कोई रियायत नहीं मिलेगी। PTI को आईन और कानून से मावरा कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। सियासी मसाइल मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। वज़ीर ममलकत कानून बैरिस्टर अकील अहमद मलिक की टेक्सला में मीडिया से गुफ्तगू। कार्बन के अखराज में हिस्सा न होने के बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर। मौसमियाती तब्दीली के बायस दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। गुज़श्ता बरसों के दौरान पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। हर मुल्क पर मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात मंडला रहे हैं। कुदरती आफात से कोई भी मुल्क तनहा नहीं निपट सकता, मिलकर इक़दाम करना होंगे। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का आफात और मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से निपटने के हवाले से इस्लामाबाद में पहले ECO वज़ारती इजलास से खिताब। मारूफ ब्रॉडकास्टर इशरत फातिमा के तजुर्बात से इस्तिफादा करेंगे। PTV में खुश आमदीद कहते हैं। इशरत फातिमा नए न्यूज़ कास्टर्स की तरबियत करेंगी।
سوشل میڈیا کے دور میں عشرت فاطمہ جیسی شخصیات کا کردار کلیدی ہو گیا ہے۔ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی میں مزید بہتری لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وفاقی سیکرٹری اطلاعات اور ایم ڈی پی ٹی وی اشفاق احمد خلیل۔ پرتپاک خیر مقدم کرنے پر عشرت فاطمہ کا وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ اور پی ٹی وی انتظامیہ سے اظہار تشکر۔ مقبوضہ کشمیر میں پابندیاں مزید سخت، بھارتی ریاستی دہشت گردی کے شکار کشمیریوں کی مشکلات میں اضافہ، محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں اور پابندیوں کا سلسلہ تیز، گاڑیوں، مسافروں اور راہگیروں کی سخت تلاشی لی جا رہی ہے۔ تمام بڑے شہروں اور قصبوں میں بڑی تعداد میں بھارتی فوج، پیراملٹری اور پولیس اہلکار تعینات۔ کشمیری بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں پوسٹرز چسپاں، ڈوڈا میں سڑک حادثے میں 10 بھارتی فوجی ہلاک، 10 زخمی۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فورسز کی بمباری میں مزید 11 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، شہداء میں 2 بچے اور 3 صحافی بھی شامل۔ دیر البلح پر اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد شہید ہوئے۔ وسطی غزہ میں گاڑی پر حملہ، کوریج کرنے والے 3 صحافی شہید۔ لبنان کے جنوبی علاقے پر صہیونی فورسز کی بمباری میں 2 افراد جاں بحق۔ بھارت میں سیکیورٹی خدشات، بنگلہ دیش اپنی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کے موقف پر ڈٹ گیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا بھارت جانا محفوظ نہیں، ہماری حکومت کا فیصلہ ہے کہ ٹیم بھارت نہیں جائے گی، امید ہے آئی سی سی ہماری بات سنے گی۔ مشیر کھیل بنگلہ دیش آصف نذر: ہم T20 ورلڈ کپ کے میچز سری لنکا میں کھیلنا چاہتے ہیں، ہمارے ورلڈ کپ نہ کھیلنے سے آئی سی سی کو نقصان ہوگا۔ صدر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ امین الاسلام۔ Well, that's a beauty. Bowled. Edged and taken. آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ پاکستان سپر 6 مرحلے میں پہنچ گیا۔ آخری گروپ میچ میں زمبابوے کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستانی بالرز کی شاندار بالنگ، زمبابوے 36ویں اوور میں 128 رنز پر ڈھیر۔ پاکستان نے ہدف بآسانی 27ویں اوورز میں 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ اوپنر سمیر منہاس 74 رنز پر ناٹ آؤٹ، پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ انڈر 19 ورلڈ کپ دیکھیے پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست۔ Game, set and match. ہینڈ شیک بھول گئے آپ، لگتا ہے پڑوسیوں کے پاس بھی رکے تھے۔ ہینڈ شیک۔ ہلو آگے جی، پاکستان میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 سیریز پی سی بی نے پرومو جاری کر دیا۔ آسٹریلوی کھلاڑیوں کو خوش آمدید۔ ہینڈ شیک بھول گئے اب، لگتا ہے پڑوسیوں کے پاس بھی رکے تھے۔ ویڈیو کی یہ لائن سب کی توجہ کا مرکز، سوشل میڈیا پر وائرل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں سلما کوثر۔ کھیل اور کھلاڑی کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ سلمان حیدر، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سرکاری کام، روزمرہ کے معاملات، لمبی قطار، باری کا انتظار، وقت کی قربانی، لیکن اب بدل رہی ہے یہ کہانی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے عوام دوست اقدام کی عملی تصویر۔ پاکستان اور آذربائیجان کے باہمی اشتراک سے پاکستان آسان خدمت سینٹر اسلام آباد کا قیام۔ پاکستان آسان خدمت سینٹر، جہاں پہ مختلف جو ادارے ہیں ان کی خدمات عام شہری کو مہیا ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے لیے ایک بے پناہ آسانی فراہم کرے گا یہ ادارہ۔ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بجلی کا بل، پاسپورٹ کی درخواست، نیا شناختی کارڈ اور بائیو میٹرک تصدیق، نکاح اور برتھ سرٹیفکیٹ، ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید اور گاڑی کی رجسٹریشن سمیت 60 سے زائد خدمات ایک ہی چھت تلے ہوں گی دستیاب۔ خواتین، بزرگوں اور اسپیشل افراد کے لیے خصوصی سہولیات۔
वक्त की बचत, खिदमात तेज तर, सहूलियात पहले से बेहतर। ये है डिजिटल पाकिस्तान की हकीकी उड़ान। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। आलमी अमन और ताउन के लिए एक तारीखी इकदाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के क़याम की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी है। अमरीका और पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों ने गजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत कर दिए हैं। तफसील बताएंगे ज़िशान अली भट्टी। Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. डेवोस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तजवीज़ करता गजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तकरीब में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज रही। अमरीकी सदर ने तकरीब के दौरान खसूसी तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ उनका खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चार्टर पर दस्तखत किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बहरीन और मराकश के वज़ीर खारजा ने बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर की तौसीक की। अर्जेंटाइन, आज़रबाईजान, कोसो, पैराग्वे, उज़्बेकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर ने चार्टर पर दस्तखत किए। आर्मीनिया, बल्गारिया, हंगरी, मंगोलिया के वज़ीर आज़म और उर्दन के नायब वज़ीर आज़म ने दस्तखत किए। सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, कजाकिस्तान के वज़ीर खारजा और मुत्तहिदा अरब अमारात के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने चार्टर पर दस्तखत किए। 8 इस्लामी मुल्कों के वज़ीर खारजा की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि गजा बोर्ड ऑफ पीस की तौसीक सलामती कौंसिल की करारदाद 2803 के जरिए की गई है, जिसका मकसद मुस्तकिल जंग बंदी को मुस्तहकम करना, गजा की तामीर नौ की मुआवनत करना और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत और रियासती हैसियत पर मबनी मुनसिफाना और पायदार अमन को फ़रोग़ देना है, ताकि खित्ते के तमाम ममालिक और अवाम के लिए अमन व इस्तेहकाम की राह हमवार हो सके। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस दुनिया के ताकतवर और अहम रहनुमाओं पर मुश्तमिल है। ये इदारा आलमी अमन के लिए बुनियादी किरदार अदा करेगा। डेवोस में बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से होने वाली तकरीब से सदर ट्रंप के खिताब की तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि आलमी अमन के लिए ये बोर्ड एक मुनफरिद और बेमिसाल इदारा साबित होगा। ये एक तारीखी कदम है और तमाम मौजूदा रहनुमा इसमें भरपूर हिस्सा डालेंगे ताकि दुनिया में देरपा अमन कायम हो। Together we are in a position to have an incredible chance to end decades of suffering, stop generations of hatred and bloodshed, and forge a beautiful, everlasting, and glorious peace for that region and for the whole region. We're going to have peace in the world. बैनुल अक़वामी अमन के इक़दामात का हवाला देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि आलमी रहनुमाओं ने अपने मुल्कों के मफादात और खित्ते के अमन के लिए भरपूर ताउन किया। As president, I ended those 8 wars in 9 months, including Pakistan and India. अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस बोर्ड ऑफ एक्शन है। इस बोर्ड में शामिल रहनुमा अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। आने वाले दिनों में मजीद मुल्क बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनेंगे। गजा के इंतजामी अमूर पर कौमी कमेटी के चीफ कमिश्नर ने गजा में अमन और खित्ते के रोशन मुस्तकबिल के लिए अमरीकी सदर की काविशों को सराहा। अमरीकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप के इक़दामात से आगाह किया। अगला मरहला गजा में डीमिलिटराइजेशन और गजा की तामीर करके कारोबार का फ़रोग और लोगों को रोजगार के मौके फराहम करना है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे और दोनों की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी खुशगवार मुलाकातें हुईं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियॉफ, अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान सऊद से मुलाकातें हुईं। फोरम में शरीक रहनुमाओं से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों के तबादले और गर्म जोशी देखने में आई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आलमी इक़्तिसादी फोरम में ख़ुसूसी खिताब के मौके पर शिरकत की।
डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार से इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की सदर ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और ICRC के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। फरीकैन ने बाहमी दिलचस्पी के अबूर को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार और थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान डेवोस में मुलाकात के दौरान मईशत, तिजारत, सरमायाकारी और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के आज़म का इयादा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। अफ़्रीकैन ने दो तरफ़ा सफ़ारती ताल्लुकात के क़याम के 75 साल मुकम्मल होने पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। और डेवोस से पाकिस्तान के लिए खुशखबरियों का सिलसिला। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में पाकिस्तान ने आलमी सरमायाकारों, बैनुल अक़वामी इदारों और दुनिया की बड़ी कारोबारी क़यादत की भरपूर तवज्जो हासिल कर ली। तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद शाहिद। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौका पर डायोस में वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतह बिजनेस राउंड टेबल मुनक़्क़द हुआ। इजलास में दुनिया की मारूफ मल्टीनेशनल कंपनियों की चीफ एग्जीक्यूटिव्स और सीनियर क़यादत ने शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान की माशी इस्लाहात, सरमायाकारी के मौक़े और तवील मुद्दत तरक्की पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में आलमी कंपनी नेस्ले के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और एशिया व अफ्रीका के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्रेमी ईगल ने पाकिस्तान में $60 मिलियन अमरीकी डॉलर की इजाफी सरमायाकारी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नेस्ले पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दत शराकत दारी के लिए पुरअज़म है। वाज़िह है कि ये ऐलान हाल ही में इस्लामाबाद में नेस्ले वफ़द और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के दरमियान होने वाली मुलाकात का तसलसल है। अज़रबैजान की स्टेट ऑयल कंपनी ने भी पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। स्टेट ऑयल कंपनी के हुक्काम ने वफाकी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में बताया कि आइंदा माह तक पाकिस्तान के तेल व गैस के शोबे में सरमायाकारी को ख़त्मी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि हुकूमत तेल, गैस और मादनियात के शोबों में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी को खुसूसी अहमियत दे रही है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर बिल गेट्स ने वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान में जारी इस्लाहाती अमल, सेहत के शोबे की तरजीहात और पायदार तरक्की के लिए गेट्स फाउंडेशन के साथ ताउन को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए गेट्स फाउंडेशन की ताउन को सराहते हुए सेहत के शोबे में मौजूद चैलेंजेस से निमटने में गेट्स फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। बिल गेट्स ने पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर जोर देते हुए कहा कि सेहत के मंसूबों पर मौसर अमल दरामद के लिए वफाकी व सूबाई इदारों के दरमियान करीबी राब्ता नागुज़ीर है। डेवोस में होने वाली ये मुलाकातें और सरमायाकारी के ऐलानात इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हुकूमती इस्लाहात से पाकिस्तान पर आलमी बरादरी और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने गजा में अमन और मसला फ़लस्तीन के हल के लिए हर आलमी फोरम पर आवाज़ बुलंद की है। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस मुआहदे के हवाले से बात करते हैं डेवोस में मौजूद PTV न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इकराम चौधरी से। जी इकराम, आगाह कीजिएगा इस मुआहदे के हवाले से क्या अहम तफसीलात हैं? जी, न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि आलमी सलामती के लिए आज एक अहम पेशरफ्त हुई है जो गजा बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर दस्तखत हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तकरीब की मेज़बानी की है। हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में जाए देखें तो इसराइल की जो फ़लस्तीन के ऊपर दहशतगर्दी थी 2 साल से ज़्यादा तक जारी रही, जिनमें हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसके ऊपर फिर मुसलमान मुल्कों ने एक स्टांस लिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हर फोरम पर इस मसले को उठाया। उन्होंने फ़लस्तीन के हकूक़ की बात की। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास के मौके पर मोहम्मद मुस्तफ़ा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मिले। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल सपोर्ट जो है उस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। सितंबर में जब जनरल असम्बली का इजलास हुआ तो उस मौके पर मुसलमान मुल्कों के सरबराहों ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और उनसे इसराइल की जारहियत बंद कराने के लिए किरदार अदा करने के हवाले से तबादला ख्याल किया, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 नकाती अमन एजेंडा जो है वो पेश किया, जिसके तहत गजा में जंगबंदी हुई और फिर मिस्र में तारीखी मुआहदे पर दस्तखत हुए। ये उसी मुआहदे का तसलसल है जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अपनी करारदाद के ज़रिए भी तौसीक़ की और इस अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए रजामंदी दी और गो अहेड दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद मुल्कों को भी इसमें शिरकत की दावत दी है। ये गजा में अमन की बहाली के साथ वहाँ पर तामीर नौ का काम जो है, वहाँ पर जो लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर करने है उसके हवाले से इक़दाम किए जाएंगे और बिल आखिर एक जो अमन का ख्वाब है जो फ़लस्तीन के लिए वो शर्मिंदा ताबीर होगा। इस तकरीब में भी इस आज़म का अयादा किया गया रुकन मुल्कों की जानिब से कि वो अमन अमल को पायदार बनाने के लिए, फ़लस्तीनी अवाम का म्यार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए तामीर नौ के काम में
हर मुमकिन तावन करेंगे। एक अहम कदम है आलमी सतह पर मशरिक़ वस्ती में अमन के लिए, आलमी सलामती के लिए, और जिसके गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर चार्टर के ऊपर दस्तखत हुए हैं। और ये अब आइंदा आने वाले दिनों में 100 दिन के जो अहदाफ हैं वो मुकर्रर किए गए हैं, जिनके हसूल के लिए इक़दाम जो हैं वो किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकराम चौधरी। और पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने आतशदगी के वाक़यात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबे भर की तमाम बुलंद इमारतों, तालीमी इदारों और मार्केटों में 2 हफ्तों के अंदर फायर हाइड्रेंट्स नस्ब करने और इमारतों की जियो टैगिंग का अमल मुकम्मल करने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने लाहौर में मुल्क की तारीख के पहले ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट का भी इफ्तिताह किया। तफसील से आगाह करेंगे ताहिर जाफरी। लाहौर में पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें आतशदगी के वाक़यात के सद्देबाब और अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वाज़ेह किया कि आम आदमी की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी अव्वलीन तरजीह है। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में 2 हफ्तों के अंदर फायर ऑडिट मुकम्मल करके थर्मल ड्रोन, जियो टैग फायर हाइड्रेंट्स और बिल्डिंग कोड 2022 पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट पर अमल दरामद के लिए पैरा फोर्स को ख़ुसूसी इख्तियारात दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि सूबे भर में अहम मकामात की जियो टैगिंग करके वहाँ फायर हाइड्रेंट्स नस्ब किए जाएं। तजारती मराकज़ और तालीमी इदारों समेत तमाम बुलंद इमारतों के दाखिली और खारजी रास्तों से रुकावटें हटाई जाएं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने लाहौर में मुल्क की तारीख के पहले ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया और इलेक्ट्रिक व्हीकल को खुद ड्राइव किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पेट्रोलिंग के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल से ईंधन के अखराजात और कार्बन अखराज में कमी आएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि ग्रीन पॉलिसिंग साफ सुथरी फिजा और गुड गवर्नेंस के विजन की अक्कास है। इस मौके पर ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आला को बताया गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में सर्वेलेंस का जदीद निजाम, 360 डिग्री कैमरा और स्पीड डिटेक्शन आलात नस्ब है। ब्रीफिंग में बताया गया कि पेट्रोलिंग के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल से ईंधन की मद में 80 लाख रुपए माहाना बचत होगी और कार्बन का अखराज सिफर हो जाएगा। वज़ीर आला ने ग्रीन पॉलिसिंग मंसूबे को मरहलावार दीगर अजला में शुरू करने की हिदायत भी की। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर आइम्मा मसाजिद को जनवरी में बज़रिया पे ऑर्डर एजाज़िया की अदायगी जारी है। हुकूमत पंजाब ने 10 रोज में 1 अरब रुपए से ज़ायद का एजाज़िया इमाम मस्जिद तक पहुंचा दिया है। फरवरी से आइम्मा मसाजिद को खुसूसी एजाज़िया कार्ड के जरिए अदायगी की जाएगी। आइम्मा मसाजिद में 25,000 रुपए माहाना एजाज़िया की तकसीम के लिए पंजाब भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर में खुसूसी डेस्क कायम किए गए हैं। पंजाब में अब तक 68,000 से ज़ायद आइम्मा मसाजिद रज़ाकाराना तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। हुकूमत पंजाब एजाज़िया प्रोग्राम की मद में सालाना 20 अरब रुपए से ज़ायद रकम खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि एजाज़िया की अदायगी का निज़ाम आसान, शफाफ और जदीद खतूत पर सवार किया गया है। पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि हुकूमत गुर्बत के खात्मे, जामे माशी तरक्की और पायदार रोजगार की फराहमी के लिए पुराज़िम है। वज़ीर आला ने कहा कि पिछले साल फरवरी से अब तक पंजाब भर में मजमूई तौर पर रोजगार के 9,94,000 से ज़ायद मौक़े पैदा किए जा चुके। 3,15,000 से ज़ायद नौकरियाँ बाकायदा सरकारी भर्तियों, इदारा जाती इस्लाहात और सर्विसेज में तोसी के जरिए पैदा की गईं, जबकि रोजगार के 2,03,000 से ज़ायद मौक़े SME फाइनेंसिंग के जरिए फराहम किए गए। वज़ीर आला ने अपने पैगाम में बताया कि 4,75,000 से ज़ायद नौकरियाँ अपनी छत, अपना घर, सड़कों और दीगर तामीराती मनसूबों से वाबस्ता हैं। मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक, स्कूल्स, सुथरा पंजाब समेत दीगर मनसूबों के जरिए भी नौकरियाँ फराहम की गई हैं। और सदर ममलकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी से उर्दन के लिए नामजद सफ़ीर रिटायर्ड मेजर जनरल खुर्रम सरफराज खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मेजर जनरल रिटायर्ड खुर्रम सरफराज खान को उर्दन के साथ फ़लस्तीन के लिए भी असनाद तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी गई। सदर ममलकत ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम, उर्दन के बरादर अवाम और रियासत फ़लस्तीन की क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात को अहम करार देते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तारीख, सकाफत और मज़हब की बुनियाद पर देरीना ताल्लुकात कायम है। गुज़श्ता बरस शाह उर्दन के दौरे पाकिस्तान के दौरान इस बात पर इत्तफाक हुआ था कि दो तरफा ताउन बिलखुसूस सियासी रवाबित, तजारत, सरमायाकारी, दिफा और सलामती के शोबों, अवामी रवाबित, अफरादी कुव्वत की तरक्की के शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग दिया जाएगा। सदर ममलकत ने उर्दन में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को उजागर किया और पाकिस्तानी बरादरी की फलाह बहबूद के लिए बेहतर कौंसलर खदमात, राबताकारी और कम्यूनिटी के साथ करीबी ताउन को यकीनी बनाने पर जोर दिया। फ़लस्तीन के हवाले से सदर ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ क़ुदरादियत और 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर एक आज़ाद रियासत फ़लस्तीन के क़याम, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो, के लिए सिफारती हिमायत का इरादा किया।
صدر آصف علی زرداری نے جوڈیشل کمیشن کی سفارشات اور وزیر اعظم کے ایڈوائز پر سندھ، لاہور اور پشاور ہائی کورٹس کے ایڈیشنل ججز کی مستقلی اور توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت نے سندھ ہائی کورٹ کے 10 ایڈیشنل ججز کو بطور مستقل ججز توثیق دینے کی منظوری دی۔ ان میں جسٹس میران محمد شاہ، جسٹس تسنیم سلطانہ، جسٹس ریاضت علی سحر، جسٹس محمد حسن، جسٹس عبدالحمید بھرگی، جسٹس جان علی جنیجو، جسٹس نثار احمد بمبرو، جسٹس علی حیدر آدھا، جسٹس محمد عثمان علی ہادی اور جسٹس محمد جعفر رضا شامل ہیں۔ صدر مملکت نے سندھ ہائی کورٹ کے 2 ایڈیشنل ججز جسٹس خالد حسین شاہانی اور جسٹس سید فیض الحسن شاہ کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کی بھی منظوری دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے لیے 11 صدر مملکت نے 11 ایڈیشنل ججز کی بطور مستقل ججز توسیع کی منظوری دی۔ ان میں جسٹس حسن نواز مختوم، جسٹس ملک وقار حیدر آوان، جسٹس سردار اکبر علی، جسٹس سید احسن رضا کاظمی، جسٹس ملک جاوید اقبال وائیں، جسٹس محمد جواد ظفر، جسٹس خالد اسحاق، جسٹس ملک محمد اویس خالد، جسٹس چودھری سلطان محمود، جسٹس تنویر احمد شیخ اور جسٹس ابھر گل خان شامل ہیں۔ صدر مملکت نے لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج جسٹس طارق محمود باجوہ کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کی بھی منظوری دے دی۔ پشاور ہائی کورٹ کے 6 ایڈیشنل ججز کی بطور مستقل ججز توسیع کی منظوری دی گئی، جن میں جسٹس محمد طارق آفریدی، جسٹس عبد الفیاض، جسٹس صلاح الدین، جسٹس صادق علی، جسٹس سید مدثر امیر اور جسٹس قاضی جواد احسن اللہ شامل ہیں۔ صدر مملکت نے پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز جسٹس فرا جمشید، جسٹس انعام اللہ خان، جسٹس ثابت اللہ خان اور جسٹس اورنگزیب کی مدت ملازمت میں بھی 6 ماہ کی توسیع کی منظوری دی۔ پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان کے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا مقصد فلسطین میں مستقل جنگ بندی قائم رکھنا اور تعمیر نو کے عمل میں حصہ لینا ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلسطین اور کشمیر اس وقت امت مسلمہ کے 2 بڑے مسئلے ہیں۔ پاکستان نے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کو ہر فورم پر اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ہر معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ قومی اسمبلی نے انکم ٹیکس ترمیمی بل سوم منظور کر لیا۔ بل خزانہ کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے پیش کیا۔ وقفہ سوالات اور تخفیف غربت و سماجی تحفظ کے وفاقی وزیر سید عمران احمد شاہ نے بتایا کہ BISP نے خیبر پختونخوا، پنجاب اور گلگت بلتستان میں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں ترجیحی بنیادوں پر مالی معاونت فراہم کرنے کے لیے باقاعدہ پروگرام تشکیل دیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گئی۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک بھر کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گلیات، نتھیا گلی، ٹھنڈایانی میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئٹہ سمیت زیارت، کان مہترزئی، مسلم باغ، توبہ کاکڑی اور توبہ جگزئی میں بارش کے ساتھ برف باری ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں چترال، دیر، مالاکنڈ، باجوڑ، بنیر، شانگلہ، کوہستان، کولائی، پلاس، بٹاگرام، تورگر، مانسیرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، محمد، اورگزئی، خیبر، کورم، پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، مردان، سوابی، کوہاٹ، ہنگو، کرگ، لکی مروت، بنو، ٹانگ، ڈیرہ اسماعیل خان اور وزیرستان میں اکثر مقامات پر وقفے سے بارش، جبکہ پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر کراچی میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات اور کل تیز بارش اور برف باری کے باعث بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے مقامی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، جبکہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خطرہ ہے۔ اس دوران بالائی علاقوں میں درمیانی سے شدید بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو لہ میں -11، گوپس، کردو، بگروڈ، پاڑا چنار -5، کالام -4 اور مالم جبہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، برف باری اور شدید موسم کے دوران پاک فوج کی تیرہ سے عارضی انخلا کرنے والے شہریوں کے لیے امدادی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک فوج ادھر پنجاب کے مختلف اضلاع میں وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔
PDM में पंजाब ने सूबे भर की ज़िले इंतजामिया को किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल के लिए अलर्ट रहने की हिदायत की है। सूबाई कंट्रोल रूम समेत तमाम अजला के एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से सूरत-ए-हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। PDM ने ज़्यादा बारिश की सूरत में मुतल्लिका महकमों को नशेबी इलाकों से पानी के फौरी निकास की हिदायत और आवाम से अपील की है कि बिजली के खंभों, लटकती तारों और बोसीदा इमारतों से दूर रहें। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की, अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदीर। और मौसम की खबरों के बाद आपको आगाह करते हैं कारोबारी दुनिया की खबरों से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान 100 इंडेक्स 654 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,87,688 पर बंद हुआ। जमीर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की बेहतर इक्तिसादी पॉलिसीज की वजह से मुल्की मईशत मुस्तहकम होती जा रही है। इन पॉलिसीज की वजह से मुल्क के मुआशी आशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। जहां एक तरफ समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से रिकॉर्ड तरसीलात भेजी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स में नुमाया इजाफे के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुस्तहकम हो रहे हैं। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को देखते हुए आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग B- को बरकरार रखा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में दोबारा से कदम रखने जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने एक बार फिर पाकिस्तानी मईशत के हवाले से पॉजिटिव रिमार्क्स पास किए। ऑटो सेक्टर कंटिन्यू आ रहे हैं और हमने देखा कि लास्ट मंथ जो ऑटो फाइनेंसिंग के नंबर आए, ऑटो सेल्स के नंबर आए, वो गुज़िश्ता साल से बढ़कर थे, जिसके बायस सरमाएकार दोबारा से मार्केट के अंदर री इंटर हो रहे हैं और फोकस उनका ऑटो सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 26 जनवरी को अपनी इंटरेस्ट रेट के हवाले से मीटिंग हेल्ड करने जा रहे हैं और जिसमें कभी इम्कान है कि 50 बेसिस पॉइंट फर्दर इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हर गुजरते दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रही है। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 563 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 238 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 201 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 124 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज बाजार हिस्स में 49 अरब 15 करोड़ रुपए की लागत के 4,24,000 सौदे हुए, जिसमें 1 अरब 6 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स का कारोबार हुआ। आज मार्केट में पावर जनरेशन, कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर्स और सीमेंट की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखी गई। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि नौजवानों और ख़वातीन को बाख्तियार बनाए बगैर पायदार माशी तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। वो सियालकोट में तालिबात में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील बताएंगे वक्कास भट्टी। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि वजीर आजम यूथ लैपटॉप प्रोग्राम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ पहला कदम है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए इस प्रोग्राम की अफादियत और इसके मुस्बत नताए जाने के बाद हुकूमत ने इस पर मजीद सरमायाकारी की है। प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव रेप्लिकेट ना सिर्फ यहाँ पे हुआ बल्कि फिर दूसरे सूबों ने भी इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की और वहाँ भी ये कामयाबी से जो है वो जारी और सारी है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसने यूथ को अक्रॉस पंजाब एंड नाउ अक्रॉस पाकिस्तान एम्पावर किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मुआशी सरगर्मियों में ख़वातीन के फ़ाल किरदार से मुल्क की मईशत में इनकलाब बरपा हो सकता है। बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर में बैठ के दुनिया को अप्रोच करते हैं, वहाँ से ऑर्डर लेते हैं और मार्केट से या यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे आइटम उठा के एक्सपोर्ट कर देते हैं। और ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो यूथ को ये प्रोग्राम जो है वो मुयस्सर कर रहा है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने यूनिवर्सिटी की 506 तलबात में मेरिट पर लैपटॉप तकसीम किए। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से इस्लामाबाद में जनूब मशरकी एशियाई मुल्कों की तंजीम आसियान के सफ़ीरों ने मुलाकात की, जिसमें इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सलामती समेत दिफाई ताउन और रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख़याल हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और बाहमी एहतराम और ताउन की अहमियत पर जोर दिया और इलाक़ाई इस्तेहकाम में आसियान के मरकज़ी किरदार के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा किया। आसियान के सफ़ीरों ने इलाक़ाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि आइंदा माह इस्लामाबाद का विजन 2027 ला रहे हैं, जिसमें तलबा के लिए यूनिवर्सिटी एक टाउन की तर्ज पर होगी। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से मुतालिक तमाम मामला तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इमरान मनसब खान की रिपोर्ट।
قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ہونے والی وزیر اعظم کی یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کی تقریب سے خطاب میں وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ جس طرح اسلام آباد کو تبدیل کیا اسی طرح یونیورسٹی کو بھی تبدیل کریں گے، جو ممکن ہوا وہ یونیورسٹی کے لیے کریں گے۔ اگر اسلام آباد کو ہم پورا لیں تو قائد اعظم یونیورسٹی کے بغیر اسلام آباد مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو قائد اعظم یونیورسٹی جس میں پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس آئے ہوتے ہیں، اور یہ وہ واحد یونیورسٹی ہے جس میں آپ کو پاکستان کے ہر کونے کا ایک کلر ملے گا یہاں پہ، تو میرے خیال میں یہاں پہ جب وہ آئیں تو ان کو وہ یادگار ٹائم رہنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے ہر اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئے، اسلام آباد میں یونیورسٹیز ہوں اور یہاں پہ آ کے اسٹوڈنٹس پڑھیں اور بیسٹ فیسلٹیز ان کے لیے ہوں۔ ہم آلریڈی ایک اسلام آباد کا ویژن 2027 لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ اگلے ماہ، اور اس میں ہم اسلام آباد کو ایک یونیورسٹی ٹاؤن کے طور پہ لے کے آ رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ آج پھر بتا رہا ہوں، جو زمینوں پر غیر قانونی قابض ہیں وہ خود اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی کی 1709 ایکڑ پر اگر کسی کا قبضہ ہے تو اس کو واگزار کروائیں گے۔ اگر گورنمنٹ کی لینڈ ہے تو آپ خود چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ ہم بار بار وارن کر رہے ہیں سب کو، اور اس ٹائم پہ ایک میسو آپریشن جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ کی لینڈ ہے اور آپ وہاں بیٹھے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہماری بالکل کلیئر پالیسی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اگر ان 1700 ایکڑوں میں اگر کہیں پہ کوئی چیز ہے تو وہ بھی صاف ہوگی، پلس اسلام آباد میں ایک ایک کونے میں یہ ہم بڑے کلیئر ہیں اس معاملے میں کہ ہم نے اس پورے اسلام آباد کو اس سے صاف کرنا ہے۔ تقریب کے اختتام پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے حوصلہ افزائی کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی کے 30 ہونہار ٹاپر طلبہ میں وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت لیپ ٹاپس بھی تقسیم کیے۔ عمران منصف خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی قدرتی آفات سے بچاؤ کے حوالے سے وزارتی کانفرنس میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر زور دیا گیا۔ انیس آوان رپورٹ کریں گے۔ پاکستان کی صدارت میں ہونے والی ای سی او وزراء کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان قدرتی آفات سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ The only question on the table is that are we going to do it unilaterally within the compounds that we are, the countries, or is there a togetherness that we can hold and share our resources and share our efforts and share our technologies and put something for our future generations together. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا کہ خطے کے ممالک کو ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اجلاس کے اختتامی سیشن میں مندوبین نے آفات سے بچاؤ، موسمیاتی تغیرات سے نمٹنے اور خطے میں استعداد کار بڑھانے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے پر اتفاق کیا۔ مشترکہ اعلامیے میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ تمام ممالک مل کر ایک محفوظ اور پائیدار خطے کی تعمیر کے لیے عملی اقدامات کریں گے۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے مطابق گل پلازہ کی آتش زدگی سے مرنے والوں کی تعداد 50 ہو چکی ہے، جبکہ لاپتہ افراد کی تعداد 88 ہے۔ 50 افراد کی پوسٹ مارٹم کے بعد ڈی این اے کے ذریعے 8 افراد جبکہ چہرے کے خد و خال سے 7 افراد کی شناخت ہو چکی ہے۔ مزید لاشوں کی شناخت کا سلسلہ جاری ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے گل پلازہ میں سرچ آج بھی جاری رہا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور پاکستان انجینئرنگ کونسل نے عمارت کا دورہ کیا۔ ٹیکنیکل کمیٹی نے گل پلازہ کو مختوش قرار دے دیا ہے۔ ریسکیو آپریشن کے بعد اسے منہدم کر دیا جائے گا۔ کمیٹی نے گل پلازہ سے متصل پلازوں کا بھی معائنہ کیا ہے۔ گل پلازہ میں خوفناک آتش زدگی کے دوران فائر فائٹر فرقان علی نے فرض کی راہ میں اپنی جان قربان کر کے جرأت، بہادری اور انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ تفصیل بتائیں گے سید جہانگیر علی۔ ہمت اور جواں مردی کی مجسم تصویر، شہید فرقان فائر فائٹر، دوسروں کی زندگیاں بچانے والا یہ ہیرو آج پوری قوم کا فخر بن چکا ہے۔ گل پلازہ میں آگ بجھانے کے دوران فائر فائٹر فرقان علی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئے۔ شہید کی بہنوں نے بتایا کہ فرقان ایک بہادر اور فرض شناس انسان تھا جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے سب سے آگے رہتا تھا۔ فائر فائٹر فرقان ان فائٹرز میں شامل تھے جو فرض کی ادائیگی کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ فرقان نے بھی آگ کے شعلوں میں گھرے ہوئے افراد کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگ میں کود گئے۔ سب سے چھوٹے ہونے کے باوجود ایسے تھے سب سے بڑے، بہت خیال کرتے تھے ہم بہن بھائیوں کا۔ ہم ہاسپٹل گئے، جو ہاسپٹل جا کے دیکھا تو وہ زخمی تو نہیں تھے، شہید ہو چکے تھے۔
बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक थे माशाल्लाह। उन्हें बचपन से फायर ब्रिगेड में जो है ना जॉब का बहुत शौक़ था, तो बचपन से जो है ना उन्होंने फायर ब्रिगेड की ट्रेनिंग करी, फायर ब्रिगेड में जो है ना उन्हें जॉब मिली माशाल्लाह से, वो बहुत खुश थे। उन्होंने वालिद साहब की बहुत खिदमत करी, फुरकान ने बहुत खिदमत करी है। यही वजह है जो वालिद साहब की दुआओं का नतीजा कि आज फुरकान ने शहीद का रुतबा पाया है। शहीद फुरकान के मामू का कहना था कि गिरता हुआ मलबा भी शहीद फुरकान के हौसलों को कमज़ोर नहीं कर सका और फर्ज शनासी के दरमियान हाइल नहीं हुआ। दिलेर फायरमैन था, अच्छी फायर फाइटिंग करता था, बस जिनने पूरे घर को संभाला है, समझो ये 6 बहनें 2 भाई। कहने लगा मैं काम करूँगा, मैं फर्स्ट कार में हिस्सा कहने लगा, मैंने चलो बेटा आप चले जाओ, वो मेरे साथ रहता था फील्ड में। फुरकान अली जैसे बहादुर सपूत कौम का असल सरमाया हैं, जिनकी कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जा सकती। फायर फाइटर फुरकान की कुर्बानी सिर्फ एक सानिया नहीं बल्कि जुर्रत, ईसार और इंसानियत से वफा की रोशन मिसाल है। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और अभी आपको बताएं कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज इंतजामिया ने भारतीय यौम जमहूरिया से कबल हिफाजती इंतजामात के नाम पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं, जिससे पहले से भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार कश्मीरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इंतजामिया ने यौम जमहूरिया की नाम नहाद तकरीब का पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाने के लिए मुहासरों और तलाशी की कार्रवाइयों और पाबंदियों का सिलसिला तेज कर दिया है। श्रीनगर और जम्मू के अलावा दीगर तमाम बड़े शहरों और कस्बों में बड़ी तादाद में भारतीय फौजी, पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। हसास मकामात पर भारतीय फोर्सेज एहलकार मुसलसल गश्त कर रहे हैं। लोगों की नकल मकानी और हरकत पर निगाह रखने के लिए CCTV और ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम, जहां यौम जमहूरिया की नाम नहाद मरकजी तकरीब मुकम्मल होगी, वहां भारतीय फोर्सेज के हिसार में है। श्रीनगर जम्मू शाहराह के अलावा तमाम अहम सड़कों पर भी सख्त हिफाजती इकदाम किए गए हैं। भारतीय फोर्सेज ने हसास मकामात पर नाके लगाए हैं और इजाफी चौकियां कायम की हैं, जहां गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी ली जा रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मकबूजा जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और बैरून मुल्क कश्मीरियों से अपील की है कि वो 26 जनवरी को भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाकर दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दे कि वो अपने वतन पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। मकबूजा वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिनके जरिए लोगों से अपील की गई है कि वो भारतीय यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाएं। जिला डोडा में सड़क हादसे में भारतीय फौज के 10 एहलकार हलाक जबकि 10 जख्मी हो गए। भारतीय फौज की बुलेट प्रूफ गाड़ी सड़क से फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में 20 से ज्यादा एहलकार सवार थे। कसूर में कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने खुडियाँ खास में कलमा चौक का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मलिक अहमद खान ने कहा कि पंजाब में खूबसूरती और तरक्की के मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। मलिक अहमद खान ने कहा कि शोहदा की यादगारों की तौहीन करने वालों और मुल्क दुश्मन अनासर में कोई फ़र्क नहीं। उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ की गई किसी भी साजिश को कबूल नहीं किया जाएगा। और नाज़रीन, अभी आपको आगाह करें कि मारूफ न्यूज़ कास्टर इशरत फातिमा ने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ कर दिया है। इशरत फातिमा बतौर मेंटोर खिदमात अंजाम देंगी। नमरा सोहेल की रिपोर्ट। मारूफ न्यूज़ कास्टर इशरत फातिमा ने पाकिस्तान टेलीविजन के साथ अपने सफर का दोबारा आगाज कर दिया है। उन्होंने PTV को बतौर मेंटोर ज्वाइन किया है। इस सिलसिले में उन्होंने तकरीबन 1 दहाई के वक्फे के बाद आज PTV न्यूज़ पर अपना पहला बुलेटिन भी पढ़ा। भारत में सिक्योरिटी खदशात, बांग्लादेश अपनी टीम भारत न भेजने के मौक़िफ़ पर डट गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का भारत जाना महफूज नहीं। हमारी हुकूमत का फैसला है कि टीम भारत नहीं जाएगी। सेक्रेटरी इत्तलात और नशियात और पाकिस्तान टेलीविजन के मैनेजिंग डायरेक्टर इशफाक अहमद खलील ने भी बुलेटिन में खुसूसी तौर पर शिरकत की। इशफाक अहमद खलील ने इशरत फातिमा को शानदार खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इनके तजुर्बात से इस्तेफादा PTV की खुशकिस्मती है। न्यूज़ कास्टिंग में ये एक ट्रेंड सेटर हैं, रही हैं, अब भी हैं। ये एक एकेडमी की हैसियत रखती हैं। हमेशा से ज़ुबान, लहजा, मेरे ख्याल में ट्रेंड सेटर्स में इनका नाम आता है। जो एक मेयार था न्यूज़ कास्टिंग का, बुलेटिन का पढ़ने का, लबो लहजे पे तवज्जो देने का, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। तो इस सूरत में इशरत फातिमा साहिबा जैसी जो शख्सियात हैं, उनका मेरे ख्याल में किरदार जो है वो मज़ीद कलीदी हो गया है, और इसीलिए हमने उनको ये नई जिम्मेदारियाँ जो है वो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि वो आएँ और अपना जो इनका एक्सपीरियंस है वो आगे लोगों तक पहुंचाएंगे।
वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर, सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात और पाकिस्तान टेलीविजन के MD इशफाक अहमद खलील और आला हुकाम ने इशरत फातिमा के घर जाकर उन्हें PTV में मेंटोर के तौर पर खिदमात सरअंजाम देने की दरख्वास्त की थी। ये आए पाकिस्तान टेलीविजन में मेंटोर के तौर पे, एक बड़े के तौर पे, ये हमारी जो न्यूज़ कास्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी तरबियत के लिए, उर्दू ज़बान के फ़रोग के लिए, उनको सिखाने के लिए कि न्यूज़ कैसे पढ़ी जाती है अंडर प्रेशर, अच्छे हालात में, बुरे हालात में, कोई कुदरती आफत आ जाए खुदा ना खास्ता, बिकॉज इन्होंने उतार चढ़ाव ज़िंदगी के बहुत देखे हैं, तो इनके आने से हमें भी हौसला मिलेगा और PTV के इदारे को तक़वियत मिलेगी। इशरत फातिमा ने PTV को दोबारा ज्वाइन करने पर आमादगी का इजहार करते हुए कहा कि PTV से दोबारा वाबस्तगी उनके लिए एजाज की बात है। PTV न्यूज सेंटर इस्लामाबाद आमद पर इशरत फातिमा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात और पाकिस्तान टेलीविजन के मैनेजिंग डायरेक्टर इशफाक अहमद खलील, पाकिस्तान टेलीविजन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिमा शेख, डायरेक्टर न्यूज डॉक्टर हारून इलाही तूर, दीगर शोबों के सरबराहान, शोबा न्यूज के अफसरान और एंकर पर्सन्स ने उनका खैर मकदम किया। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी ने सेक्टर G14-1 में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद गैर कानूनी मकानात और तामीरात मस्मार कर दी। इंतजामिया ने सरकारी अराजी पर कब्जे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 15 कीमती प्रॉपर्टीज वागुजार करा ली। ऑपरेशन के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। जिला इंतजामिया ने शहरियों से कानून की पासदारी और गैर कानूनी तामीरात से इज्तनाब की अपील की है। स्पोर्ट्स बुलेटिन में खुशामदीद। भारत में सिक्योरिटी खदशात के बायस बांग्लादेश क्रिकेट टीम अपनी टीम भारत ना भेजने के मौक़िफ़ पर डट गया। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत ना भेजने का ऐलान कर दिया। मुशीर खेल बांग्लादेश आसिफ नजरोल ने कहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम का भारत जाना महफूज नहीं, वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह हमारी हुकूमत का फैसला है जो कि तब्दील नहीं होगा। उम्मीद है ICC हमें श्रीलंका में मैचेस खेलने का मौका देगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीरुल इस्लाम ने कहा है कि हम T20 वर्ल्ड कप के मैचेस श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। हमारे वर्ल्ड कप ना खेलने से ICC को नुकसान होगा। ICC ने बोर्ड इजलास में बांग्लादेश की भारत ना जाने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा था कि T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर अपनी टीम भारत ना भेजने का ऐलान किया हुआ है। पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में पहुंच गया। अरारे में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से शिकस्त देकर ग्रुप C में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग के बाद जिम्बाब्वे की टीम 35.5 ओवर्स में 128 रन पर हिम्मत हार गई। अली रजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 8 खिलाड़ी सिंगल फिगर आउट हुए। मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुबहान और मोमिन कमर के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। अहमद हुसैन ने 1 विकेट अपने नाम की। पाकिस्तान ने 129 रन का आसान हदफ 26.2 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनर सुमेर मिन्हास ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की और 74 रन पर नॉट आउट रहे। उन्होंने 3 छक्के और 6 चौके लगाए। उस्मान खान ने 26 और अली हसन बलोच 3 रन बनाकर आउट हुए। अहमद हुसैन 24 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। सुमेर मिन्हास प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। Game, set and match. पाकिस्तान। और एक ब्रेक जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।